रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. From the modest wheels of a bicycle to the soaring heights of his private jet, a man's extraordinary journey unfolds as we bring to you the second episode of Tips and Talks powered by UU. Here today we've got another OG guest with us. It's Mr. SK Mehta, an entrepreneur, a businessman, a philanthropist. We welcome you, sir. Sat Sri Akal. How are you doing, sir? Sat Sri Akal, doing brilliantly well. My compliments. You've spoken such kind words. You've taken my breath away. God bless you. Thank you so much, sir. Sir, I can feel your energy right here. आपकी energy ने पूरा room fill कर दिया है. Sir, being a night owl myself, I was surprised कि you are an early bird even at this age. Sir, हमारी जो youth है particularly, we all are night owls. It's like I heard that 3:30 AM पे आपकी morning start होती है. So mostly जो youth है, they go to sleep at that time. जितने बजे आप उठते हो उतने बजे हम लोग सोने जाते हैं. So sir, what is that reason behind this consistency of yours? Good question, Shreya. To be very honest with you, we have also done all this when we were your age. The only difference was कि हम लोगों के parents ने इतनी liberty नहीं दी हुई थी. हम लोग का एक cut off time होता था, which means that by 9 o'clock we have to be back home. Okay. So that was the cut off line for us, and 9 o'clock we had to be back, which has changed now drastically. There is no time actually. So that's one of the reasons why there is a difference between us and the younger generation. I do get up at 3:30 in the morning because there is a time when you begin to realize in your life that there is a lot of gratitude you need to offer to the God Almighty. Your God has many names, so I will address it as God only. There is one supreme power up there who is controlling us. And you begin to realize that there is so much you have been blessed with, much beyond your means. And you need to definitely offer gratitude. Why in the morning? Because all your Vedas say that early morning is the time जब हर गुरु, हर ईश्वर, हर भगवान, कोई भी नाम दे दीजिए, वो उस समय शांति में सृष्टि पे विराजमान होते हैं. Wow, okay. So जब आपने कनेक्ट करना है और एक शांति है चारों तरफ, तो आपका मन ऑटोमेटिकली उस शांति में जिसको भी आप मानते हैं उससे जुड़ जाएगा. तो ये रियलाइज किया सुबेरे उठ के एक रूटीन बनाने में अपनी कि 3:30 उठ के ईश्वर की इबादत में जाओ and be grateful to God for all that He has given you. It means that what the youth should realize is that our body is our temple. And we have to revere God also at the same time. So we should value these things and have a good routine and discipline at the same time. Sir, I also heard that you are a fitness person. You love fitness and आप gym जाते हैं even at the age of 72, which for me was quite astonishing because what the youth generally goes through is that हम लोग peer pressure के अंदर आके we go to the gym sometimes and there is this concept of results. We are results oriented but in a negative way. I'll describe that negative way. It's like if we are joining the gym or doing something for the sake of fitness, if we do not get the results as soon as possible, we will lose our hope and we'll go back to square one. So what is that thing that motivates you to go to hit the gym every day and have this consistency in terms of fitness? How can we do that? See, Shreya, the problem is that the younger generation goes more for the looks. वो ये चाहते हैं कि हम bouncer बन जाएं, big muscles and which is wrong. वो पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे according to me are not right, like they go have supplements or whatever have you. I have no business to comment on that. The flip side of it is that, see, this is a machinery. ये कुदरत की एक मशीन है आपके अंदर. अगर आप इसकी सेवा नहीं करेंगे तो ये मशीन एक दिन फेल हो जाएगी. अगर आपके पास रोल्स रॉयस भी है, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो भी सड़क पे खड़ी हो जाएगी.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बड़ा मत दिखाइए कि बड़े मसल्स हैं, ये है. आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ कितनी है. आई बीन अ राइडर, एंड व्हेन यू राइड अ हॉर्स, it's basically a game of strength between you and the horse. Who wins? Because if the horse takes you on, वो आपको 1 मिनट में नीचे फेंक देगा. अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और पावर है कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो वो हमेशा ये रियलाइज करेगा ये मेरा मास्टर है. वो स्ट्रेंथ क्या है? आपकी इनर स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स. I may not be big, but if I can control a horse, that shows how strong, I am. So fitness, from the perspective of what you said, should be taken as the build of inner strength. Absolutely. Rather than just a show off or the pump of muscles. Absolutely. Okay, so that is a good thing. I think we will keep this in mind, particularly the ones who are hitting the gym. Sir, you talked about spirituality. Yes. Sir, my question to you would be your take on spirituality in context to what the youth is currently doing. हम लोगों को भगवान जी तभी याद आते हैं जब कुछ sad होता है हमारे साथ, या something that doesn't go our way. But when something good happens, we do not express that gratitude in that same manner. So what is your take on this? आज ईश्वर के साथ इंसान सौदा करता है. सौदा यूं करता है कि ईश्वर के आगे जाके there are 2 things basically we all ask for. I don't. Barter और डर. Okay. बाटर क्या है कि ईश्वर तू मुझे ये दे दे, मैं तेरे को ये दूंगा. और डर क्या है कि ईश्वर मुझसे तू ये चीज मत छीन लेना. अगर ये 2 चीजों को आप बिल्कुल भी अपने जहन में ना लाएं और आप एक ही चीज करें, और वो है शुक्राना, you will see life will change. Because when you get into that shukrana, you will only begin to realize, look at yourself, what you have, and then you see the others, what they don't have. So shukrana is very important. There should be no barter, and you should not be there to do a deal with the God. Only shukrana. With God, it's a parent-child relation. I completely agree with you. Sir, एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी, particularly it's like इन वेरियस रिलीजन्स, जैसे हमारा हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, हमें सर ढकने के लिए कहा जाता है इन ऑर्डर टू शो रिस्पेक्ट. लाइक इट्स अ सिंबल टू व्हेन यू आर शोइंग रिस्पेक्ट, आप सम्मान दे रहे हैं. और सर जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तभी भी हम लोग सर ढकते हैं. बट सर हम जब आपके दरबार साहिब गए तो वहाँ पर ऐसा एम्फेसिस नहीं डाला, आपने ऐसा कहा भी नहीं कि ज़रूरत है कुछ खास. सर इसका पर्टिकुलर रीज़न व्हाट वुड बी दैट? श्रेया, सबसे पहले तो अगर मेरी स्टेटमेंट आपके व्यूअर्स को किसी किस्म का ठेस पहुंचा रही है, और आई एम ट्राइंग टू हर्ट sentiments of the people who are watching this program, I with folded hands ask for forgiveness. I am only offering to you my philosophy of life, and I have that freedom. It's your choice. आप मान लीजिए गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, it is your choice. आप सिर ढक के जाइए या नहीं जाइए. मेरा सोच ये है कि ईश्वर की इबादत में आप सिर ढक के तो बैठ गए, और अंदर आप क्या सोच रहे हैं कि शाम को मैंने क्लब कब जाना है, मैंने आज श्रेया को धोखा कब देना है, आज मैंने उसका क्या गलत काम करना है. द सेकंड थिंग, आप एक अपने आप को कन्वे कर रहे हो मैसेज कि इस कमरे के अंदर मेरे हजूरी में मेरे बाबा जी बैठे हैं, और जैसे मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा तो मैं अपना सर हटा दूंगा जिस चीज से ढका है. इसका मतलब कि बाबा जी बाहर नहीं है, विच इज रॉन्ग. ही इज ऑल ओवर. सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अगर इंसान को सर ढकना है तो वो अपनी आत्मा से ढके, कपड़े से नहीं. That is beautiful, sir. That's important. Okay, sir. So it's like जो रिस्पेक्ट आती है गॉड के लिए, किसी भी क्रीचर के लिए, it should come from our heart. And there is not necessary, it is not necessary to follow customs all the time. जी. But it should be a matter of inner belief and self. इसी के ऊपर श्रेया मैं 1 सेकंड आपका और लूंगा. गुरु ग्रंथ साहब में मेरे मालिक ने कहा है, और बहुत अच्छा कहा है. उन्होंने कहा है कि जब आप मेरी इबादत में आ गए और मैंने आपको अपना लिया,
तो उनका कहना ये है कि तू ही मोही, मोही तू ही, मतलब कि ये आप हैं और ये मैं हूं। तू ही मोही, मोही तो ही, फिर अंतर कैसा? जब आप एक हो गए, उनके अंदर समा गए और वो आपके अंदर समा गए, तो फिर तो कोई अंतर ही नहीं है ना। पर उनके अंदर समाना है आपको, Okay, sir. और उनको अपने अंदर समाना है। See God in the other human being and other Yes. creature as well. Yes. तब वो रिस्पेक्ट एकदम अंदर से आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके सर, तू ही मोहे मोही तू है। जी सर, इससे मुझे एक और चीज याद आई। सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड आई ऑब्जर्व दैट यू हाईली वैल्यू द पीपल अराउंड यू, जी एंड इट्स ऑलवेज सेड कि लाइफ में लोग कमाना पैसे कमाने से जी। बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी। So, sir, as an entrepreneur, what is your take on treating our employees? How should a person treat their employees? जैसे हमारा परिवार है या just as an asset? Shreya, firstly, we should stop treating our employees with this word called employees. Okay. They are your family. I fail to understand why my bachas in this house who look after us cannot address me as daddy, and they do that. Okay. And their children, they call me Dadu. I love to hear those sounds in my ears, Daddy and Dadu, because the Sahabs have gone out of India. The Britishers have gone, so they have taken the Sahabs with them. Okay. Unless and until you treat the kids who look after you more than you do to your own children, your prayers will never be answered, because that's what God says. You first have to treat and be kind to the people below you, and then people who you feel are at par with you or above you. So for me, philosophy of life is, they are my kids, and sure, you might just be surprised if I share this with you. We have a big family over here, and we all eat our lunch together. That is amazing, sir. The same food is spread on the dining table, and we all sit together, 28 of us. And 28? Yes, and eat the same food. Lunch together, because morning timings are different for everybody. Evening, I don't have dinner. My last meal is lunch. So dinner cannot be together. But one meal, that is lunch, we all have it together. I have never seen in my life leftover food going into the fridge. It's all eaten. That is so amazing. I feel so grateful even talking to you right now, because You're the kind. thoughts that are coming from you, it's like ये हमें पता होता है, जी but there is this point you have to realize it again in जी। order to live by that ideology. जी Sir, as an entrepreneur, what would your take be on the dropout culture? I'll give you the gist of it. What happens is, youth these days, they want to start startups. जी They want to get ahead in life and do business and everything, but कभी कभार they compromise with their studies. जैसे आपने अपनी एजुकेशन यूएसए में कंप्लीट करी and then you started with your business. These days, what youth believes is in dropout culture. Dropout कर लेना है, जी and sometimes कल्चर इसलिए क्योंकि वो एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब कि ड्रॉप आउट करना इज व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? I probably will put this into a combination of two baskets. ओके. To some extent, parenting. पेरेंटिंग. Yes. See, in our time, we never had a fallback. You had nothing to fall back. Either you make it or you break. नो बैकअप प्लान्स. Nothing. I wouldn't come back to my father to say, give me X amount of money or do whatever. He provided us education to a point as an army officer. And then he said, you're on your own. So we had those challenges before us. So parenting is very important. I think the second thing which is very, very important for this youth to realize, when the going gets tough, the tough get going. ओके. The second thing is, there is nothing impossible in life. As a youth, you may have these feelings, drop out ho gaye, ye kar liya, whatever options they are looking at, and ho jayega, kar lenge.
दैट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. ना तो होता है और ना वो कर पाते हैं. विद द रिजल्ट जो उनके कोलीग्स हैं, दे कीप शाइनिंग इन देयर लाइफ and ultimately reach their final destination of goal of success. And children, especially with these kind of attitudes, then they go into depression and so many other issues. So my take is, when the going gets tough, the tough gets going. Nothing is impossible. करना है तो करना है, जुनून के साथ करना है. Have an attitude that says you have to do it at all costs, because Absolutely. you don't even need to have a backup plan. अगर Absolutely. mindset कर लिया है तो करना है बस. Absolutely. Okay, so that's, I think the students are going to learn a lot from this. So life में बहुत सारे ऐसे incidents होते हैं जो हमारी inner personality को shape करते हैं. Particularly if I talk about your journey, there must have been so many incidents जिन्होंने आपको इतना deeply affect किया कि आपकी जो ideology वो धीरे धीरे करके shape होती गई. सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे दे कैन टेक सम लाइफ लेसन? Shreya, with this most cute and beautiful smile that you've just given me, I will share something very personal with you. Okay, sir. I started my life at a very early age, at the age of 15, and I started working as a waiter. Okay. And my father, having retired from the same town, from the army at the highest level, he was a self-made man. तो जब ये महसूस किया कि अगर मेरे फादर सोल्जर बन के और हाईएस्ट रैंक पे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो जब मेरी मदर और फादर को पता लगा कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ और पहली अपॉर्चुनिटी मुझे जो है वो एक वेटर की मिल रही है, I got a very nice response from both of them. Father said dignity of labor, and my mother said I'm the happiest person beta. But इस चीज को आप दोबारा सोचो, कर पाओगे? It's not a white collar job. Ultimately, to cut the long story short, जब decision final हो गया कि मैंने बनना ही है कुछ लाइफ में और ये वेटर की जॉब मैं जाने नहीं दूंगा, my first day of work, I remember, my mother came to see me off till the gate, और मैं साइकिल पे अपने जा रहा था, तो मदर ने मुझे देख के कहा कि दो चीज़ों का सोचो. पहली बात यह है, करना चाहते हो, लोगों के डर्टी प्लेट्स उठानी है वो है. आई सेड यस मॉम, करना है. तो उन्होंने कहा दो चीज़ें अपने साथ बेटा बांध लो अपने. वन, पिक अप योर लेफ्ट फुट और उसके नीचे लिखो मैं मीन्स अहंकार. ओके. और उसके ऊपर अपना पैर रख दो और उसको दबा दो. दूसरे पैर के नीचे लिखो दुनिया क्या कहेगी और उसको दबा दो. जब अहंकार अपना तोड़ लोगे और इस चीज की परवाह नहीं करोगे कि दुनिया क्या कह रही है, आसमान पे पहुंचोगे. वाओ. इसी इंस्टेंस पे, आई वॉन्ट गो वेरी लॉन्ग, श्रेया, देयर वाज एन इंस्टेंस, आई वाज सर्विंग माय टेबल, my colleague was serving another table, he wanted to go to the washroom, he requested me कि ये प्लीज सर्विस मेरी उस टेबल पे आप कर दीजिए. मैंने वो गलत जाके टेबल पे रख दी. Those people were happy, they had had a bit too many drinks, so they threw the food on me and kept on abusing me. I mean, I can't even express the kind of abuses that I got from those people. I had food all over me. I came back home, my parents were sitting outside in their lawn. It was summertime, and mom obviously asked me why have I come early. I tried to show her my back by slipping inside the house and going in for a shower. Mother is a mother. She pulled me over and said, "What is this?" And I told her, this is the instance that happened. Her first reaction was, "तुमने क्या किया?" And I said, "माँ, apologize किया." "उन्होंने क्या किया?" I said, "उन्होंने मुझे, they abused me bad." "What did you do?" And I said, I kept on apologizing and asking for forgiveness, and I never said a word beyond that, mom. She hugged me, Shreya. और मालूम उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने पहली सीढ़ी पे पैर रखा है ह्यूमैनिटी की, और तुम जीत गए. सो ह्यूमैनिटी जब आपके अंदर आ जाएगी और आप इस चीज का एहसास करोगे
कि मैं कुछ नहीं हूं और ना हूं और ना हूंगा, तो आपके अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा. So that is the reason why people like Ratan Tata are born. Yes, sir. The stronger you become, the gentler you will be. Yes. The more connected to humanity Yes. you'll be. Yes. Okay, sir. That's amazing. These are some great insights, sir. So it's said कि जो वृक्ष फलदार होते हैं अक्सर वो झुकते हैं. वैसे ही सर जो इंसान संस्कारों से और सभ्यता से जुड़े होते हैं वो हमेशा शायद आपके जैसे ही होते होंगे. इनफैक्ट यू आर द आइडियल फॉर दैट. आई वुड से दैट. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू able to hear your thoughts on all of these things that I'm asking. So many people said कि ये truck है, car है, some said jeep. So we've got so many afwas, rumors associated with you. I'm going to ask you all of them and you have to reply whether they are true or not. I will do my best. Sir, सबसे पहली अफवाह आपके बारे में ये है कि आपको एक बार आपके फादर से unusual punishment मिली थी where he told you Yes. to switch on and off the Yes. light 200 times Yes. but without touching the light switch. Yes. तो This सही is सच है? Absolutely true. Okay, sir. Absolutely true. So- I had left the lights on in the room Okay. and he did not like it. So instead of punishing me, he made me stand next to the switch and keep counting 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and yeah. सर अगली अफवाह हमने आपके बारे में ये सुनी है कि जैसे लोग गाड़ियों पे गेड़ियां मारते हैं आप Yes. घोड़ों पे गेड़ियां मारते हैं. Which is true. Again, Which is true, yes. Okay, so the cowboy look says it all. Thank you. सर आपके बारे में ये भी अफवाह है that it's a love marriage that you've had and आप अपनी बेटर हाफ को डेट पे अपने प्राइवेट जेट पे लेके जाते थे. I wish if I had a private jet then. मेरे पास तो साइकिल थी. Okay guys, this might be true or not but we've heard sir had jet. Okay. सर अगली अफवाह आपके बारे में ये है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रक है इसके साथ साथ आपको गोला बारूद भी मिला था और आपने घर में कहीं पे छुपाया. अरे बाप रे, ये बिल्कुल गलत है. इससे पहले कि मुझे अंदर बंद कर दें, मैंने सिर्फ ये ट्रक 300 टुकड़ों में उठाया था. ये बिखरा पड़ा था कबाड़ी की तरह और उसको 8 साल लगे मुझे रिस्टोर करने में और हर पार्ट इसका जो है वो यूएस से हैंडमेड बन के आया और तब इस ट्रक को मैंने 8 साल के बाद रिस्टोर किया. सो नेक्स्ट अफवाह बहुत इंटरेस्टिंग है. यही. सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर बिजनेसमैन, आपके तेल के कुएं हैं दुबई में, सच है कि नहीं? नहीं है. ओके, मोस्ट ऑफ द अफवाह आई विश होते. I have to ask you a few rapid fire questions. Please. I'll give you options Yes. and you have to answer as fast as you can. You got it. Okay, so we'll go now. Yes. Horse show or horse riding? For sure. Lassi or coffee? Coffee. Who's the biggest prankster, you or your sister? My sister. Okay, Lamborghini या फिर second hand Bentley? Of course, Bentley. Leg day और abs day? Both. दलिया या फिर आलू के पराठे मक्खन वाले? आलू के पराठे मक्खन के साथ. Okay. Yummy. Sir, I've heard that you are into sports also. जैसे the cowboy look, you love horse riding, polo, and in fact car rally also. Sir, horse riding, whenever I think of horse riding, what I always wonder is, it's an animal. And yet we have to have that connection with the horse. Because it's a matter of trust in the end. Sir, how do we maintain that connection with the horse? So, Shreya, the first thing you got to understand is that a horse is a horse, all right, but you have to treat him like your buddy. Okay. You have to treat him like your buddy. You have to look after him. You have to take care of him. And by the end of the day, when you ride and you dismount, he must get shabashi. And that shabashi could be a carrot, an apple, or whatever. So the horse understands the relationship between the two and he respects that. You don't have to whip a horse. Okay. You don't have to kick the horse. You don't have to treat the horse as a horse. You have to treat him as a friend. And he treats you back like a friend. He'll never throw you off his back. If you're a good rider and you develop a relationship with a horse, he'll never throw you from the back. Never. As a horse rider, we get connected to them. Oh, absolutely, absolutely. They have a very strong smelling power. So generally, what I used to do, I don't know what the others do, is I used to walk into the stable, and I would carry an apple or something from a horse before mounting also, and he would smell my hands,
and he would understand, communicate with each other that all right, I'm here to ride on him. So it's actually a very beautiful relationship you develop with the horse. Okay, sir. So this is about horse riding. Yes. Apart from that, I got to know so many stories about your car rallies. Yes. One of the most interesting one was when you completed this race Yes. from Shiv Mandir to Mussoorie in just 17 minutes. Yes. And I also got to know that उसके दौरान accident भी हुआ था आपका, and despite that, you Yes. still finished that race. So sir, I think the viewers would love to know the entire story. वो पूरा किस्सा क्या है सर, एक बार आप सुना दीजिए. So there are actually two different stories. पहली स्टोरी तो ये है कि कार एक्सीडेंट की, वो ट्रू है, सच है, क्योंकि हम जिम कॉर्बेट पार्क कर रहे थे हिमालयन रैली में 86 में, जो 7 दिन की रैली होती थी नॉन स्टॉप, और दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली खत्म होती थी, यहाँ से नैनीताल, फिर लैंसडाउन, फिर मसूरी एंड बियॉन्ड शिमला एंड देन बैक. तो हम लोगों की कोड लैंग्वेज होती है, क्योंकि स्पीडोमीटर कार का निकाल दिया जाता है ताकि ड्राइवर स्पीड को देख के घबरा ना जाए. Okay. तो वो सब चीज़ें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है, और वो कंप्यूटर जो है उसको रीड करता है आपका नेविगेटर, और वो आपको कमांड देता है. सो जिम कॉर्बेट पार्क में हम लोग जब ड्राइव कर रहे थे, तो देयर वाज अ फेवरेट सेक्शन ऑफ आवर्स, and that section was that you drive for 200 yards flat out. उसमें कोई खड्डा नहीं है, कुछ नहीं, फ्लैट आउट है, ग्रेवल है, बजरी है. तो मेरे नेविगेटर का और मेरा वो फेवरेट पॉइंट होता था, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने पॉइंट जितने पहले लूज किए होते थे वो विन करने थे. Gain that. वो गेन करना है. Yes. And we can take the lead. एंड एब्सोल्युटली एक एक सेकंड काउंट करता है आपका. जी सर. तो जब हम उस टर्न पे आ रहे थे, तो आई स्टिल रिमेम्बर कमांड ये था, राइट 60 मीन्स राइट टर्न है, 60 डिग्री एंगल पे है, फ्लैट आउट 150, 160, 170 मीन्स गो फ्लैट आउट, मीन्स गो एज फास्ट एज यू कैन फॉर 200 यार्ड, और वो फ्लैट आउट है. तो जब वो कमांड मिला तो मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया, क्योंकि टाइम गेन करना था. तो जैसे ही उस ट्रैक पे हम आए आगे, अनफॉर्चुनेटली ये गुज्जर्स की भैंसें आ गई, अच्छा. and we were not prepared. So obviously at that speed you have to use your mind, and you are trained by your trainer, and my trainer was the world champion Bill Gwynn. So he had trained us how you pull the handbrake and spin the car and save. But unfortunately यहाँ पर वो सब हम कर नहीं पाए, क्योंकि वो जंगल का जो रास्ता था उसके साइड में एक खड्डा था. So जैसे स्पिन करी कार मैंने, रेयर सस्पेंशन मेरा वो खड्डे में चला गया, और जब खड्डे में गया तो मैंने मेरी गाड़ी 5 दफ़ा रोल करी, और छत नीचे, टायर ऊपर. और जब ये हुआ तो these Gujjars came running, and they tried to open the doors for us, and we told them don't open the doors because we are fully fastened up with our seat belts and everything. You can't pull us out. आप हमें गाड़ी से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमारे सेफ्टी बेल्ट्स और हेलमेट्स वगैरह इस तरीके से लगे होते हैं कि आप नहीं निकाल पाओगे. हम ठीक हैं, आप प्लीज़ ऐसा करो, पुट माई कार बैक ऑन द व्हील्स. तो उन्होंने उठा के गाड़ी को सीधा कर दिया. वो सीधा किया, और उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया वो गाड़ी स्टार्ट हो गई. जब स्टार्ट हो गई तो फिर क्या देखना था, फिर तो Straight ahead. straight on, Race complete straight करनी. on. But Shreya, I was very badly hurt. Windscreen टूट चुका था, लाइटें टूट चुकी थी गाड़ी की, मेरा हाथ सारा कट गया था, फिंगर्स कट गई थी मेरी, और मेरे हाथ में ग्लास तक चला गया था. बट आई डिड नॉट स्टॉप. और रात को 7:30 बजे हम लोग नैनीताल पहुंचे, जहां हमारा 5 घंटे का नाइट हॉल्ट होता था. तो जब वहाँ रुके तो मुझे फीवर भी आना शुरू हो गया था. तो इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, जिन्होंने ग्लास निकाला, स्टिचेस लगाई मेरे फिंगर्स को, और उन्होंने कहा कि आप रैली नहीं कर सकते. Oh my God. So I told the doctor, I said, when the going gets tough, the tough get going. जी सर. Yes. Like I told you before. So got onto the car and went on again and completed after 5 days, और 3rd पोजीशन में कंप्लीट करी, और फॉरेन एंट्री को पीछे छोड़ दिया, उनको फिर हरा दिया. Wow sir, that's amazing. और जो सेकंड स्टोरी आप कह रहे थे, विच इज ट्रू. सो देहरादून में जब रैली आती थी तो ऑब्वियसली होम टाउन था, दुनिया को पता था कि इंडिया में 2 या 3 लोग जा रहे हैं, और फॉरेन कार्स में एंट्री एक ही करता है, और वो है मिस्टर मेहता, और वो देहरादून के हैं. तो पूरा देहरादून सड़कों पे खड़ा होता था मुझे देखने के लिए. तो कुछ उनका जोश था, कुछ यंग भी थे, यंग तो खैर अभी हैं लेकिन जब देखा ये जापानीज टीम और जर्मन टीम और कनेडियन टीम,
तो मैंने अपने नेविगेटर से कहा, मैंने कहा अगर इन्होंने हरा दिया हमारी लैंड पे तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड साइन, आई हैव टू पुट माय मुस्टैशेस डाउन देन. सो वी सेड लेट्स डू इट. सो शिव मंदिर पे फ्लैग ऑफ हुआ, रीग्रुपिंग हमारी सेवॉय में थी एंड 17 मिनट्स में क्लॉक किया. और श्रेया आई डोंट नो, मैं तो तब गाड़ी चला रहा था, लेकिन सो माय फ्रेंड्स से कि आई वाज सो फास्ट कि मेरे टायर्स के जलने की बदबू आ रही थी, वो इतना गर्म हो रहे थे टायर्स. और बट या क्रिएटेड अ रिकॉर्ड. Wow, sir. That's the story. That's an amazing. So specifically the homeland वाला part. Yes. That's true sportsman spirit. Me too. सर ये तो आपकी जर्नी का इतनी बड़ी मेगा स्टोरी का एक छोटा सा स्निपेट है जी. बट सर आई थिंक आपकी इस इतनी बड़ी कहानी में और भी बहुत सारी कई ऐसी स्टोरीज होंगी जो मुझे भी नहीं पता. मुझे तो कभी कभी व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट योर स्टोरी मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स सो मच सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. जी. वो एक न्यूज़पेपर हॉकर से ही वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट सिटीजन, आवर प्रेसिडेंट. जी. सो मैं आपकी लाइफ स्टोरी जानना चाहती हूँ. आई एम श्योर द व्यूअर्स वुड लव टू नो योर एंटायर स्टोरी फ्रॉम स्क्रैच टू व्हाट यू आर टुडे. So Shreya, life started at the age of 15. Like I was telling you, Dehradun बहुत छोटा शहर था. Opportunities were very little, but those little opportunities you had to catch on if you so wanted to. So I then first got the opportunity in a restaurant called Royal Cafe here on Ashley Hall, and the only opening they had for me was of a waiter. Then as I stepped into that, I began to realize कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है और अपनी मेहनत से बनना है, तो क्या करा जाए. तो मैंने फिर क्या करा कि न्यूज़पेपर्स बेचने शुरू करे. तो सवेरे निकल जाना अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स बेचने, फिर अपना पढ़ना, आके फिर रॉयल कैफ़े चले जाना. पर फिर एहसास हुआ नहीं, ये भी कम है पैसे, क्या करना है. तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि एक यहाँ पर बहुत फेमस डेयरी हुआ करती थी, प्रकाश डेयरी, और उनके लड़के जो थे वो मेरे फ्रेंड थे. मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कि आप मैक्सिमम दूध बेच सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है. तो मॉर्निंग में जाना, पहले मिल्क बॉटल्स सप्लाई करनी लोगों के घर के आगे, फिर जाना पलटन बाज़ार में नेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उनके न्यूज़पेपर्स लेने, वो ड्रॉप करने, फिर रॉयल कैफ़े जाना. फिर भी सोचा कि और आगे बढ़ना है, तो जिनका रॉयल कैफ़े था मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर मैं पार्ट टाइम बैठ के आपके अकाउंट्स बुक्स लिखनी शुरू कर दूं. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 100 रुपीज़ मंथ उसका भी दे देंगे. सो विद द रिजल्ट नाउ आई हैड अ कंफर्टेबल अमाउंट to look after myself. But Shreya, उसमें से भी I used to give 150 rupees to my mother. Not that she needed it. She did not need. She was living in a 12-bedroom house. She had everything under the sky. But एक जब बेटे की कमाई माँ अपने हाथ में लेती है तो शायद उसको कितना मजा आता होगा. पहली तनख्वाह को अपने पेरेंट्स को पहली नहीं, हर महीने या हर महीने मैं उनको देता था. वहाँ से जिंदगी उठी, पढ़े, फिर बाहर गए, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, दिन रात स्ट्रगल करी, हर तरीके से स्ट्रगल करी, भूखे भी सोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे. ये था दिमाग में कि काम करना है और कुछ बनना है. और आप सबकी दुआओं से, उस ईश्वर की मेहर से, माँ बाप के आशीर्वाद से बने. और फिर $6 से शुरू किया काम अपना, और ईश्वर ने इतना दे दिया कि मैं इस काबिल ही नहीं था कि जिस काबिल उसने मुझे बना दिया. तो उसका तो शुक्राना ही शुक्राना है. श्रेया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ. लाइफ में हम लोगों की लाइफ एक्चुअली डिस्ट्रॉय करी है गैजेट्स ने. मोबाइल फ़ोन आप देखो, 2-2 साल के बच्चे खेल रहे होते हैं मोबाइल पे. यस. आई रिमेंबर आई वॉज इन द 10th एंड आई वॉज लिविंग इन माई फादर्स हाउस. उस दिन मेरे फ्रेंड्स सारे गए हुए थे मूवी, और मैं नहीं जा पाया मूवी बिकॉज मेरे को फादर ने पैसे नहीं दिए. तो मैं घर पे था, गुस्सा भी था. तो मैंने ऐसे ही अपने मदर से कहा क्या है, मैं बोर हो रहा हूँ. सो माई फादर हर्ड दैट वर्ड, बोर हो रहा हूँ. ही कॉल्ड मी, ही सेड सन आर यू गेटिंग बोर्ड. सो आई जस्ट केप्ट क्वाइट, आई कुडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम. ही सेड डोंट वरी, पिक अप योर साइकिल, go to the clock tower and pick up a loaf of bread. एक ब्रेड लेके आओ, कल सुबह ब्रेकफास्ट पे ब्रेड खाएंगे. तो साइकिल उठाई, चले गए, ब्रेड लेके आ गए, और कहते जब वापस आओगे तो कम एंड रिपोर्ट टू मी.
आके मैंने कहा डैड मैं ब्रेड लेके आ गया। कहते वेरी गुड, ये लो 2 रुपए, अब उसकी पेमेंट करके आओ। आई वेंट बैक अगेन टू पे, सो ही मेड मी डू 4 trips and believe me Shreya, after that I never used the word borrow now. So you lesson, see, father ka lesson. See, that's how we were punished and kept busy. You know, another thing I'll tell you, father was in the army, and so we used to live in a big bungalow in Delhi, and on that road there were about 15 bungalows only of the senior officers of the army, और backyard पे पीछे उनके जो ड्राइवर भैया होते थे, हेल्प वो सब होते थे। श्रेया, मेरी मदर रोज शाम को उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि जितने पीछे बच्चे हैं तुम उनके साथ जाके खेलोगे, ओके, और जूते नहीं पहनोगे, नंगी पाँव खेलोगे जाके, ताकि एहसास करो कि अपने आप कि तुम्हारे को जिंदगी में ईश्वर ने कितना दिया है, और वो तब तुम्हें महसूस होगा जब तुम उनके साथ जाके खेलोगे। सो जब उनके साथ खेलना, चोट लगनी पैर में, उनके पैरों में भी जूते नहीं होते थे, तब धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि अपने नजरें हमेशा नीचे झुका के चलो, ऊपर नहीं। और फिर हफ्ते में 2 दफा मदर ने टक देनी, करी पे बना के, चिप्स बना देने, कुछ बना देने, और कहना ये लेके जाओ और जाओ खेलो। और इंस्ट्रक्शंस ये होती थी, खेलने के बाद सारे बच्चों को साथ में बिठाओ और सब मिलके खाओ, बीच में रख देना। सेंस ऑफ शेयरिंग, camaraderie. That's it. So these are certain wealths that have been created by us and we are very proud. इसीलिए मेरी यही गुजारिश हर इंसान से रहेगी, संघर्ष करो, पैसे के लिए नहीं। एक शेयर चीज आपको मैं बताता हूँ, and I wish if this gets carried forward to the younger generation, इंसान को एक ही चीज याद करनी है कि इंसान की मौत 2 दफा होती है। एक उसकी मौत होती है जब उसके शरीर से प्राण चले जाते हैं, पर एक्चुअली उसकी मौत होती नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ों का संबंध बिछड़ जाता है, आपके बदन का, आपके योर बॉडी एंड योर सोल, दे जस्ट पार्ट वेज। इंसान की मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम भूल जाती है। लाइक रतन टाटा, ही इज गोइंग टू लिव फॉरएवर, ही इज गोइंग टू लिव फॉरएवर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि संघर्ष करो, पैसा जरूर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक अपने सिद्धांत जो हैं जिंदगी में आपके, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, जितना भी कर सको वो करो। और प्यार ऐसी दौलत है, अब जितना इसको बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। सो very briefly, that's what life is all about. So my takeaway from what you told me would be basic principles of being a human. वो हमेशा याद रखना है, जमीन से जुड़े रहना है, बिल्कुल। और जिंदगी में कुछ कमाओ ना कमाओ, लोग कमाने हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था। प्यार कमाना है, उनका आशीर्वाद कमाना है, और दौलत भी जरूर कमाओ, मैं ये नहीं कहता नहीं कमाओ, पर जितना वो आपको देता है उसको अपना नसीब समझ के एक उसका प्रसाद कबूल करो, और उसका शुक्राना करो कि मेरे मालिक, यही मेरे नसीब में था और मुझे मिल गया, और तेरा शुक्राना है। That's important. In one of your lessons also, अभिमान पैर के नीचे। जी जी। Okay sir, your story is so amazing. I'm sure youth would learn so much from it, particularly लीक से हटके कुछ करने में। और मुझे लगता है कि जब मैं अब देहरादून विजिट करूंगी ना, और आपने जो जगहों का नाम लिया है, मुझे वहाँ याद आएगा कि सर यहाँ थे एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सो पर्टिकुलरली यूथ ऑफ देहरादून के लिए भी ये एक बहुत अच्छा लेसन होगा। थैंक यू सर, वन थिंग दैट इंट्रिग्ड मी अ लॉट वाज द World War II का ट्रक। जी सर, मैंने सुना कि आपको वो ट्रक बहुत इंट्रीगिंग लगा, या फिर आपको उसमें पर्टिकुलरली दिलचस्पी आई, तो आप उसे इतनी दूर से यहाँ लेके आए, यू रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड इट। सो सर, ऐसा क्या था आपके उसको वहां से यहाँ लाने की मंशा क्या थी, और क्या आपने उसे चलाया भी है? सो श्रेया, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू, ये ट्रक मुझे मिला कहाँ? ये मुझे मिला नागालैंड में। ओके, नागालैंड में किसी के पास था, और इसके ऑलमोस्ट 300 पीसेस थे, scattered. 300? हाँ, it was like scattered. मेरे ख्याल 6-6 फुट घास के अंदर, स्टेयरिंग कहीं है, कहीं है। तो एक मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, वो पुरानी गाड़ी रिस्टोर करते हैं, मिस्टर टूटू धवन, और वो टीवी पे भी आते हैं ऑटोमोबाइल के ऊपर
तो मैंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एसके उठा के ले आएंगे, जो कुछ है उठा के ले आएंगे। सो इसके टुकड़े 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 उठा के हम ले आए उनकी वर्कशॉप में दिल्ली, नोएडा। एंड देन इट टुक अस ऑलमोस्ट अबाउट 8 years to restore it. But 8 everything is original. Everything is original. And there are very few trucks in the world of this type. And one of them, now you all own it. जो मेरी चीज़ है वो आप सबकी है। सर, आपको जितना भी हमने सुना, आपकी ये स्टोरीज जानी, उससे मुझे एक चीज़ तो रियलाइज हो गई, एंड आई विल कीप दिस लेसन फॉर एवर, दैट जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और जिस तरीके से सर आप जीते हैं, पर्टिकुलरली दैट विल इन्फ्लुएंस सो मैनी पीपल बिकॉज दे आर गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम योर स्टोरी। और सर येस, पर्टिकुलरली ऑन द टेक ऑफ फिटनेस, आप 72 years की एज में भी 72 kg उठाते हैं। सो वी वुड ऑल्सो लाइक टू सी योर एब्स सर, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स एंड एवरीथिंग। सो thank you sir for having us today. We are so grateful to you. Pleasure. And to our dear beloved audience, this was the second episode of Tips and Talks. We hope that you are not going to forget to like, share and subscribe. और आप लोगों को किस OG personality का इंटरव्यू देखना है in the next podcast, DM करना ना भूलें. Follow our Instagram as well. This is us signing out.